এবাৰ এই মুহূৰ্তত দেশৰ ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ বেৰিকেড ভাঙি পেলাইছে লাখ লাখ জনতাই ভাঙি পেলাইছে বেৰিকেড কেৱল মাত্ৰ ৰাহুল গান্ধীক চাবৰ বাবে ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰিবৰ বাবে ৰাহুল গান্ধীক এবাৰ মাত্ৰ কাখৰ পৰা চাবৰ বাবে জনতাৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে उत्तर प्रदेश बीजेपीर दुर्ग उत्तर प्रदेश कपाई तुलिसे राहुल गांधीर सुनामी अकल्पनीय परिस्थिति एने धৰণৰ सृष्टि होइसे उत्तर प्रदेश राहुल गांधीर सुनामी टस नस হৈ পৰিছে बीजेपी আৰু স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে এবাৰ उत्तर प्रदेश मोदीर ঢৌ নহয় এবাৰ उत्तर प्रदेश राहुলৰ ঢৌ এই মুহূৰ্তৰে ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছে নিটক্সৰ দৰ্শকৰ বাবে এই মুহূৰ্তৰ বিগ পলিটিক্যাল নিউজ জনতাই ভাঙি পেলালে ৰাহুল গান্ধীৰ সভাৰ বেৰিকেড লাখ জনতাই ভাঙি পেলাইছে ৰাহুল গান্ধীৰ সভাৰ বেৰিকেড ৰাহুল গান্ধীক চাবলৈ ৰাইজে ভাঙিলে সকলো বেৰিকেড অকল্পনীয় পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী সভাত এক অকল্পনীয় পৰিস্থিতি বিজেপিয়ে কল্পনাই কৰা নাছিল ভবাই নাছিল কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ সুনামিয়ে টস নস কৰিলে বিজেপিৰ দুৰ্গ উত্তৰ প্ৰদেশ যোগী আদিত্যনাথৰ ভেটি কপাই কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীক চাবলৈ ভাষণ শুনিবলৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিল লাখ জনতাৰো জনতাই ভাঙি পেলালে বেৰিকেড ৰাহুল গান্ধীৰ সভালৈ হিলদল ভাঙি আহিল জনতা উবুৰি খাই পৰিল জনতা ব্যাপক জনসমৰ্থন লাভ কৰিছে ৰাহুল গান্ধী আৰু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপিয়ে কল্পনা নকৰা পৰিবেশৰ সূচনা হ'ল এক অকল্পনীয় পৰিস্থিতি মোদী শাহ যোগীৰ বুকু কপাই উত্তৰ প্ৰদেশত গৰ্জন কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী গৰজি উঠিল কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী বিজেপি নহয় উত্তৰ প্ৰদেশত বলিছে এবাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ ধুমুহা মোদীৰ ঢৌ নহয় উত্তৰ প্ৰদেশত এবাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ ঢৌ মোদী শাহৰ অংক খেলিমেলি কৰি পেলালে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ হুংকাৰ 4 জুনৰ পৰা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ নাথাকে নৰেন্দ্ৰ মোদী বিজেপিয়ে বিদায় ল'ব লাগিব কেন্দ্ৰত আৰু চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে বিজেপি এনে ধৰণে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে পুনে এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো চাওক কি ধৰণে এক অকল্পনীয় পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে দূৰদূৰণিলৈকে কেৱল মাত্ৰ জনতা আৰু জনতা লুকাৰণ্য হৈ পৰিছে ৰাহুল গান্ধীক চাবলৈ এনে ধৰণে উবুৰি খাই পৰিছে এই সকল জনতা উত্তৰ প্ৰদেশত এনে ধৰণৰ অকল্পনীয় পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশত য'ত কোৱা হয় নৰেন্দ্ৰ মোদী যোগী আদিত্যনাথৰ দুৰ্গ আৰু সেই দুৰ্গ খহাই পেলাইছে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে জলৈকে আপোনাৰ চকু নিবদ্ধ হৈ থাকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকে তালৈকে কেৱল মাত্ৰ জনতাৰ ভিৰ এনে ধৰণে লাখ জনতাই ভিৰ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী সভাত এক অকল্পনীয় পৰিস্থিতি দৃশ্যাংক এই মুহূৰ্তত এনিটক্সৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছো বিজেপিয়ে যি ধৰণে চিন্তা কৰি আছিল ভাবি আছিল কিন্তু তেনে পৰিবেশ এই মুহূৰ্তত হৈ থকা নাই সম্পূৰ্ণ যেন পৰিৱৰ্তনৰ ইংগিত দিছে এই জনতাৰ উপস্থিতি উত্তৰ প্ৰদেশত এনে ধৰণৰ এক পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত এনিটক্সৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছো চাওক কি ধৰণে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীক চাবলৈ এনে ধৰণে বেৰিকেড ভাঙি এই সকল জনতা আহিছে বেৰিকেড ভাঙি পেলাইছে ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী সভাৰ এনে ধৰণৰ এক অকল্পনীয় পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত যোগী আদিত্যনাথৰ দুৰ্গ উত্তৰ প্ৰদেশত এনে ধৰণৰ এক পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছিল আৰু সেই ৰাহুল গান্ধীক চাবলৈ ৰাহুল গান্ধীৰ ভাষণ শুনিবলৈ এনে ধৰণে জনতাই ভিৰ কৰিছে যিমান জনতা হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছিল তাতকৈ বহু বেছি জনতাৰ সমাগম হ'ল এক অকল্পনীয় পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত এনিটক্সৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছো চাওক কি ধৰণে আচলতে ৰাহুল গান্ধীৰ সভাত এই জনসমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ ধুমুহাত
ৰাহুল গান্ধীৰ সুনামিত এক প্ৰকাৰ টচ নচ হৈ পৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপি। উত্তৰ প্ৰদেশৰ যি নিৰ্বাচনী অংক, সেই নিৰ্বাচনী অংক উলট পালট কৰি পেলাইছে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে। বিজেপি নহয়, উত্তৰ প্ৰদেশত বলিছে এইবাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ ধুমুহা। ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ ধুমুহা, কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ ঢৌ এই মুহূৰ্তত পৰিলক্ষিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত। নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শ্বাহ, যোগী আদিত্যনাথৰ বুকু কপাই ভেটি কপাই এনেধৰণে উত্তৰ প্ৰদেশত গৰজি উঠিছে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী। উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপিয়ে কেতিয়াও কল্পনা নকৰা এক পৰিৱেশৰ এনেধৰণে সূচনা হৈছে। ৰাহুল গান্ধীৰ সভালৈ শিলদল ভাঙি ওলাই আহিছে এইসকল জনতা। কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীক চাবলৈ, ভাষণ শুনিবলৈ ঘৰৰ পৰা এনেধৰণে ওলাই আহিছে লাখ লাখ জনতা। এই মুহূৰ্তত এই দৃশ্য দেখুৱাইছে নিটক্সৰ দৰ্শকক। ছবি চালে, এই দৃশ্য চালে, বিশেষ ভিডিঅ' ক্লিপটো দেখিলে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব কি ধৰণে আচলতে উত্তৰ প্ৰদেশত ৰাহুল গান্ধীৰ ঢৌ উঠিছে। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ঢৌ নহয়, ৰাহুল গান্ধীৰ ঢৌ। ৰাহুল গান্ধীৰ সুনামিয়ে এবাৰ টচ নচ কৰি পেলাইছে উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপি। এক প্ৰকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শ্বাহ সমান্তৰালকৈ যোগী আদিত্যনাথৰ ভেটি কপাই তুলিছে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে। উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপিয়ে কল্পনা নকৰা পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে। মোদী, শ্বাহ, যোগীৰ বুকু কপাই উত্তৰ প্ৰদেশত এনেধৰণে গৰজি উঠিছে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী। বিজেপি নহয়, উত্তৰ প্ৰদেশত বলিছে এইবাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ ধুমুহা। ৰাহুল গান্ধীৰ হুংকাৰ, 4 জুনৰ পৰা আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ নাথাকে নৰেন্দ্ৰ মোদী। তালি টোপোলা বান্ধি যাব লাগিব নৰেন্দ্ৰ মোদী। জনতা ইতিমধ্যে গুড বাই দিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীক। এনেধৰণে গৰজি উঠিছে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী। এই মুহূৰ্তত ৰাহুল গান্ধীৰ কেইবাটাও মন্তব্য আছে, ভাষণৰ কিয়দাংশ আমাৰ লগত আছে। একাধিক্ৰমে এই মুহূৰ্তত সেয়া দেখুৱাইছো এনিটক্সৰ দৰ্শকক। राहुल गांधी जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी। अरे भाइयों, आप लोग बैरिकेडिंग छोड़िए, बैरिकेडिंग छोड़िए, बैरिकेडिंग छोड़िए, बैरिकेडिंग छोड़ दीजिए, बैरिकेडिंग छोड़ दीजिए, कृपया बैरिकेडिंग टूट जाएगा। आप लोग बैरिकेडिंग छोड़ दीजिए, बैरिकेडिंग छोड़ दीजिए। साथियों, हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी आ गए हैं। आप लोग जो बल्लियां पकड़ करके खड़े हैं, जो यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी। बातचीत कर लें और आप अपना पर्सपेक्टिव ब्रदर, यहाँ पे हमारा माइक खराब हो गया और पब्लिक मीटिंग करना मुश्किल है। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने सोचा कि हम थोड़ा यूपी के बारे में बातचीत कर लें और आप अपना पर्सपेक्टिव हमें बताइए, हम आपको जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद। संविधान है कैसा है? सब लोग मिलकर के जिताओगे। इनका चुनाव चिन्ह तो जानते हैं, ये जीत करके जाएंगे। है कि आप बैठ जाइए। मूड कैसा है आपका? मूड कैसा है? बढ़िया। आपने सुना है कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्योटो की 1 सीट जीत रहे हैं।
भाइयों और बहनों, लड़ाई इस कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की लड़ाई है। बीजेपी आरएसएस इस पर आक्रमण कर रहे हैं और मैं उनको कहना चाहता हूं, अंबेडकर जी का संविधान, महात्मा गांधी जी का संविधान, जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान का संविधान, कोई भी शक्ति इसको फाड़ कर फेंक नहीं सकती है। ये जनता का संविधान है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया है। सारा का सारा फायदा उन्होंने 22 लोगों को दिलवाया। अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। करोड़ों लाखपति हिंदुस्तान के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। नाम क्या आपका? हाँ, जैसे साधु पटेल जी जो हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट बनेगी, करोड़ों लोगों की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और फिर करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में ठकाठक 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 साल के 1 लाख रुपए, महीने के 8,500 रुपए हम डालेंगे। भाइयों और बहनों, किसानों को पहली बार कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कर्जा माफ हमारी सरकार करने जा रही है। हिंदुस्तान के किसानों को अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए, कपास के लिए हम गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम उनको हम देने जा रहे हैं। यहां जो युवा आए हैं, आपके बैंक अकाउंट में भी ठकाठक 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 होने जा रहा है। 8,500 रुपए बेरोजगार ग्रेजुएट्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए और बेहतरीन ट्रेनिंग आपको हम देने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। हम आपके जेब में पैसा डालकर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे मोटरसाइकिल के पेट्रोल में के फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाला जाता है और फिर चाबी घुमाई जाती है, वैसे ही हम आपके फ्यूल टैंक में, करोड़ों लोगों के फ्यूल टैंक में साल का 1 लाख रुपए ठगाठक 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 डाल रहे हैं। भाइयों और बहनों, अग्निवीर स्कीम है, इस स्कीम को हम कूड़ेदान में फेंकेंगे। जो पुराना तरीका था, एक तरीके के शहीद, पेंशन, कैंटीन जो हम सब जवानों को देते थे, वही हम फिर से करेंगे। अग्निवीर को हम बंद करेंगे, खत्म करेंगे, कूड़ेदान में फेंकेंगे। मजदूरों को आज मनरेगा में 250 रुपए मिलता है, हम मजदूरों को 400 रुपए मनरेगा में और आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को दुगनी आमदनी देने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की पार्टनरशिप है। यहां पे हमारे हजारों बब्बर शेर कार्यकर्ता आए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब आप बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं के सामने खड़े हो जाओ, पोलिंग बूथ में खड़े हो जाओ और यहां के प्रत्याशी को 5 लाख वोटों से जिताओ। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। आप इतनी गर्मी में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।
अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं, थोड़ी डिस्कशन करते हैं। और ठीक बात है, ठीक बात है। मैं समझता हूँ कि जब माइक खराब हो गया, हम दोनों बात करेंगे, वो रिकॉर्ड होकर के जाएगी तो लोग बेहतर और अच्छा समझेंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा। और क्योंकि सोशल मीडिया से वेल कनेक्टेड है तो सब लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि हम और आप क्या बोल रहे हैं। यूपी जो 80 सीटें ले रहा है, इसमें 79 सीटें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। एक जो क्यूटो है उसमें हम और आप लड़ाई में हैं। और इस बार क्यूटो नाम कैसे जापान वाला ही है? ये क्यूटो क्योंकि जो प्रधान सांसद हैं, उन्हें सपना दिखाया था काशी के लोगों को कि दुनिया की सबसे बेहतर सिटी बनेगी क्यूटो। तो क्यूटो बनी नहीं बनी, काशी के लोग ये तय करेंगे और फिर वोट डालेंगे। तो इस बार मन मर्जी नहीं चलनी है, मन की बात नहीं चलेगी, हमारे आपकी बात और 140 करोड़ लोगों की बात और संविधान की बात होगी। और आपने देखा, हम सब ने देखा कि यूपी को नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी का सेंटर बना दिया और इतनी बेरोजगारी की है, ये जितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये ये दिखाओ, वो लोग हैं दिखाओ जो अग्निवीर या पेपर लीक, जिसकी वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिली है और ये सब रोजगार नौकरी चाहते हैं। बीजेपी ने जो झूठे सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेंट मीट के, जो झूठा सपना दिखाया था डिफेंस एक्सपो का, जो सपने बेचे थे G20 में, लेकिन इन नौजवानों को न नौकरी मिली न रोजगार मिला, आज ये खाली हाथ हैं। तो इसलिए हमें और आप मिलजुल के, जो आपने कहा, जो इंडिया गठबंधन कह रहा है कि 30 लाख बच्चों को नौकरी दी जाएगी, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और पहली नौकरी पक्की स्कीम, जिसके माध्यम से हर ग्रेजुएट को नौकरी का अधिकार, बेहतरीन ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए साल के। आपने नोट किया कि मोदी जी खटाखट बोलने शुरू कर दिए। ये आपके खटाखट के बाद वो रटारट खटाखट कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप एक बात बताइए, मुझे क्यूरियोसिटी है, थोड़ा आप अपने पापा के बारे में मुझे बताइए जी। मुलायम सिंह यादव जी के बारे में बताइए। आपने उनसे क्या सीखा? नेताजी और उनके साथ के लोग बिल्कुल जमीनी राजनीति करते रहे। हालांकि नेताजी कुश्ती, पहलवान और गाँव आप के थे। करते हो कुश्ती? नहीं, मैं कुश्ती नहीं कर पाया जीवन में, क्योंकि मैं मिलिट्री स्कूल में चला गया तो कुश्ती नहीं कर पाया। लेकिन नेताजी इसीलिए धरती पुत्र बोले गए कि वो जमीन की बात को समझते थे। धरती पर जो लोग हैं उनकी क्या भावना है, उसको लेकर के वो आगे बढ़ाना चाहते थे। और आपका इस क्षेत्र से और इस शहर से आज का लगाव नहीं है, न जाने कितने सालों पुराना लगाव है। जो इमोशनल कनेक्ट आपका इस शहर और शहर से है, वो शायद और किसी राजनीतिक परिवार का नहीं होगा। तो नेताजी से उनका हार्डवर्क और अपने लक्ष्य के लिए लगातार काम करते रहना, जो गैर बराबरी की लड़ाई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यहीं लड़े थे। हालांकि हमारी आपकी विचारधारा की यहाँ टकराव रहा, लेकिन हमारे व्यक्तिगत या जो सिद्धांत में कभी समझौता नहीं हुआ। सिद्धांत को लेकर के हमने आपके साथ खड़े हुए और कई बार खड़े हुए, और आपकी भी पार्टी सिद्धांत से बहुत करीब रही समाजवादियों के। बट मुझे लगता है कि अब एक नई तरीके की पार्टनरशिप बन रही है, क्योंकि जो इस बार हमारा कोऑपरेशन है, शायद पहले ऐसा कोऑपरेशन नहीं हुआ। मतलब बिल्कुल सब जुड़ गए। सबसे अच्छा ये है कि जितना उन्होंने कहा 2 लड़कों की जोड़ी, उतना युवा आपसे, हमसे, इंडिया गठबंधन से और जुड़ गया। तो ये नेचुरल अलायंस है, और नेचुरल अलायंस इसलिए लोग महसूस कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि नौकरी और रोजगार मिले, नौकरी और रोजगार मिले। तो ये बड़ी भावना है कि हमसे आपसे ये यूथ कनेक्ट कर रहा है। सबसे बड़ी बात, महंगाई की चोट सबसे ज्यादा इन लड़कों को लगती है। हमारी थिंकिंग है और आपकी भी है कि ये जो 22-25 लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा धन पकड़ा है, उसको ठीक करने के लिए जो हमारे युवा हैं, माताएं बहनें हैं,
उनको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा देना। देखिए, ये जो लोगों के पास पैसा पहुंचने से जो अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा, मैं समझता हूँ इनका भाग्य भी बनेगा और देश की अर्थव्यवस्था ही बेहतर होगी। ये जरूरी स्कीम है कि इनके अकाउंट में पैसा पहुंचे, इससे थोड़ा बहुत जीवन स्तर इनका भी अच्छा हो। नरेंद्र मोदी जी डिबेट से क्यों डरते हैं? क्योंकि वो सच का सामना नहीं करना चाहते। पूरा उनका झूठ का गुब्बारा है। वो बीजेपी और बीजेपी के लोग मन मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं और उनको लगता है कि डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। डेमोक्रेसी में जितना डिस्कशन होगा, जितने विचार एक दूसरे को हम सुनेंगे और एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, उतना हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। ये बीजेपी के लोगों ने न केवल हमारी जान को खतरा पैदा किया है, बल्कि लोकतंत्र को भी और संविधान को भी खतरा पैदा कर रहे हैं। और इसका नतीजा दिख रहा है कि चाइना हमारी जमीन के अंदर आ गया, ये बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो प्रोडक्शन होता है वो नहीं हो रहा है, और पूरा का पूरा एक्सटॉर्शन, ईडी, सीबीआई, ये लोग मतलब एक्सटॉर्ट कर रहे हैं। कई बार सुनने को मिल रहा है और सरकार स्वीकार नहीं कर रही है, लद्दाख की हमारी सीमाएं सुरक्षित हो गई, और अरुणाचल के आसपास या सीमा जो चीन से छू रही है वो बहुत असुरक्षित है। तो चीन से जहां हमारा सीमाओं का खतरा है, वहीं चीन से हमारे बाजार को भी खतरा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपनी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को बढ़ावा देना पड़ेगा। और ये जो स्कीम्स है, पहली नौकरी पक्की और महालक्ष्मी, ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम को जंप स्टार्ट करने के तरीके हैं। ये बहुत अच्छा जंप स्टार्ट होगा। इसको अगर फोकस होकर के आईआईटी, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को, इन सबको इकोसिस्टम में ला करके, मैं समझता हूँ युवा नौजवानों को अच्छी नौकरी और रोजगार मिल पाएगा। और हमारा लक्ष्य है कि सब, हर जात को भागीदारी मिले, स्पेस मिले, हर इंस्टीट्यूशन में, बिजनेस में, एजुकेशन के सिस्टम में। तो वो हमारा, हम दोनों का लक्ष्य है। बिल्कुल। और क्योंकि जो बात सभी दल कहते थे, आज इंडिया गठबंधन कांग्रेस भी कह रही है कि सामाजिक न्याय जरूरी है, जाति गणना जरूरी है। देश के लिए ये बड़ी चीज है। जो दुनिया में अमेरिका है, यूरोप है, अपने उन लोगों के लिए जो पीछे छूट जाते हैं, उनके लिए कुछ काम करते हैं। तो हमारा जो देश जाति के आधार पर पिछड़ा है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए ये बड़ी भूमिका होगी इस बार। बहुत अच्छा लगा, अच्छी बहुत मीटिंग हुई। अच्छा रहा, बहुत